Good morning, everyone. Today we will discuss about the oscillation in LC circuit. So oscillation in an LC circuit. So फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कुछ फिगर्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर एक कैपेसिटर मैंने लिया हुआ है और इसके साथ एक इंडक्टर लिया है। ठीक है, स्टार्टिंग में इट मीन्स व्हेन द टाइम इज़ ज़ीरो, द चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर, this plate at positive Q naught and this one is minus Q naught, and at starting there is no current in this circuit. Electric field is this side. Clear? So at time, when time is zero, it means at starting the capacitor is first charged, okay, by means of an induction coil or a high resistance battery, जिससे भी आपको करना है. The whole of the electrical energy resides in the dielectric medium in the form of electrostatic energy of the capacitor. At this time, the current in the circuit I is equal to 0 and the charge on the capacitor is plus Q naught. Okay. Suppose that after the quarter of the time period of the frequency, quarter of the time period, situation is this, ये कैपेसिटर आपका फुल्ली डिस्चार्ज हो जा रहा है एट T/4. इट मीन्स 0 से T/4 के बिटवीन चार्ज हमारा इस सर्किट में फ्लो कर रहा था एंड एट T/4 चार्ज फुल्ली फ्लो कर गया. इट मीन्स इस पॉइंट पे टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट कितना हो गया, 0. और जब फुल चार्ज फ्लो कर गया तो इस टाइम पे करंट क्या हो जाएगी आपकी, मैक्सिमम. और यहाँ पर क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा. क्लियर? करंट डायरेक्शन आपकी ये है, ये पॉइंट. इसमें क्या हुआ यहाँ पे, द कैपेसिटर बिगिंस टू डिस्चार्ज and a growing current flows through the inductor, growing current, okay, which sets up a magnetic field around it. And what is the result? This current क्या करेगी, it result the production of an induced current in the inductor, okay, and this current opposes the growing current coming from the capacitor and hence delays its discharge. ये धीरे धीरे चार्ज हमारा जब यहाँ फ्लो करेगा तो जो करंट हमारी इंक्रीज करेगी वो क्या करेगी, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू एक इंड्यूस करंट जनरेट करेगी. और जो इंड्यूस करंट होगी वो क्या करेगी, वो चाहती है कि किसी भी टाइप का चेंज ना हो. तो यहाँ करंट ग्रो कर रही है, तो यहाँ तक करंट जब ग्रो करेगी तो ये जो इंड्यूस करंट है वो कहेगी कि अब आप ग्रो मत करो. ठीक है, यानी वो चार्ज को डिस्चार्ज होने के लिए रोकेगी. तो यहाँ पर जो चार्ज का डिस्चार्ज होना होगा, डिस्चार्जिंग जो हो रही है उसमें डिले होगा. और एज द कैपेसिटर डिस्चार्ज, जब ये फुल्ली डिस्चार्ज हो गया, इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग and this energy appears in the form of magnetic energy around the inductor. Clear? And when the capacitor is completely discharged, the whole electrostatic energy is in the form of magnetic energy. At this time, the current attains its maximum value. Clear? फिर again at t is equal to T half, it means half of the time period. So again यहाँ पे क्या होगा, अब जो हमारी इंड्यूस करंट है वो क्या करेगी, अपोज कर रही थी. ठीक है, तो अब वो अपोजिट डायरेक्शन में इसको चार्ज करेगी.
तो ये प्लेट जो पहले निगेटिव थी अब वो हमारी क्या हो गई, पॉजिटिव। क्लियर। और ये पॉजिटिव थी तो ये हो गई नेगेटिव। तो अब करंट ऐसे फ्लो करनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस टाइम पे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगा प्लेट्स के बिटवीन। ठीक है। और अभी भी यहाँ करंट कितनी है, 0 है। तो कंडीशन क्या थी, कंडीशन थी एट t इज इक्वल टू t/2 एज सुन एज द कैपेसिटर इज कंप्लीटली डिस्चार्ज, जो लास्ट फिगर में हो चुका है। द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द इंडक्टर्स, this one, begin to collapse. Okay, it produces an induced EMF in the opposite direction, and this induced EMF charges the capacitor again but in opposite direction. ठीक है। and during charging the electrostatic energy of capacitor goes increasing. Okay, and when the capacitor is fully charged, it means the charge magnitude of the charge on the capacitor is plus q naught. So the magnetic energy of the inductor reduces 0. देखिए यहाँ पे मैंने लाइंस नहीं बनाई है। It means I is equal to 0 and the whole magnetic energy converted into electrostatic energy. Clear? Now again at 3t/4, ये आप फिर से ले सकते हैं। when the time is the third 3/4 of the time period, इस कंडीशन पे, तो इस कंडीशन पे फिर से हमारा यहाँ से चार्ज अब ऐसे डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो करंट आपकी ऐसे फ्लो होगी। तो उस टाइम पे आपकी मैग्नेटिक लाइंस इस डायरेक्शन में चली जाएंगी और फिर से करंट हमारी फ्लो होने लगी। और सपोज कर लीजिए कि जब फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा तो फिर से चार्ज यहाँ पे हो गया 0। तो एट 3t/4 हमारा क्या पोर्शन हुआ, 3t/4 पोर्शन पे क्या हो गया, 3t/4 पोर्शन पे जो हमारी करंट थी इस सिचुएशन पे हमारा रिवर्स डायरेक्शन पे फ्लो करेगी। ठीक है। और धीरे धीरे करंट हमारी रिवर्स में फ्लो करती जाएगी, धीरे धीरे मैग्नेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी और इलेक्ट्रोस्टैटिक कम होती जाएगी। और फाइनली जब हमारा चार्ज पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुका होगा तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो रही होगी। ठीक है। सो thus the energy obtained once from high tension battery keeps on oscillating between the capacitor and the inductor, and to and fro pulses of current are produced. The variation of Q versus T and I versus T जो होगा उसमें 90 डिग्री का फेस होता है। The current is 90 डिग्री आउट ऑफ फेस with the charge. Clear? तो इस ऑक्सीलेशन को ही हम लोग LC ऑक्सीलेशन का नेम देते हैं। ये मेरे ख्याल से आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा कि ये किस टाइप से होगा, क्योंकि इसके बाद फिर से ये प्लेट हमारी डिस्चार्ज हो गई हैं। अब फिर से करंट अपोजिट आएगी तो फिर से यहीं से रिपीटिशन, इस पॉइंट से फिर से रिपीटिशन स्टार्ट होने लगेंगे। तो ये हमारे LC ऑक्सीलेशंस होते हैं। अगर आप इस LC ऑक्सीलेशन की फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना चाहते हैं तो वो भी बड़ा इजी मेथड है, आप देखिए उसको कैसे निकालेंगे। तो इंड्यूस्ड EMF जो हमारा था, सपोज कर लीजिए कि इंड्यूस्ड EMF हमारा इंड्यूस्ड EMF इन इंडक्टर, ये हमने सपोज कर लिया है LdI/dt जो आपने पढ़ा हुआ है सेल्फ इंडक्टर के थ्रू, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, ये आप जानते ही हैं V इज इक्वल टू Q/C। यहाँ पे कोई भी सोर्स हमने कनेक्ट नहीं किया था, सो नो सोर्स ऑफ EMF। तो अगर सोर्स नहीं है तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 0। इन दोनों का ही सम आपका 0 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से जब आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आप एक पॉइंट जानते हैं, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं। आप यहाँ पे एक पॉइंट पहले से ही जानते हैं, I इज इक्वल टू dQ/dt। ठीक है। ये आपने पहले से ही, अगर मैं इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ dI/dt, तो ये d2Q/dt हो जाएगा। ठीक है, dt2।
तो यहाँ से ये इक्वेशन सेकंड ले लो आप, और सेकंड और फर्स्ट को अगर आप रिप्लेस कर लेते हैं तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर आप इसको रिप्लेस करते हैं तो देखिए क्या आएगा, एल डी आई बाई डी टी को आप डी क्यू बाई डी टी टू लिख सकते हैं, प्लस क्यू बाई सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, और अगर आप एल से दोनों साइड डिवाइड कर दें तो क्या फाइनल मिलेगा आपको, अगर आप एल से डिवाइड कर रहे हैं तो डी टू क्यू बाई डी टी टू प्लस क्यू बाय एल सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और 1/LC को आप ओमेगा स्क्वायर बोल सकते हैं, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा। इक्वेशन थर्ड ये आपने ले लिया। तो थर्ड इक्वेशन जो है ये बहुत क्लियर है, आपने SHM पढ़ी होगी, तो SHM इक्वेशन को शो करती है। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है SHM को, और SHM में ऑक्सीलेशंस होते ही हैं हमारे, ठीक है ना। तो फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू LC, सो ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC, फ्रिक्वेंसी फॉर्मूला 2 पाई न्यू इज इक्वल टू 1/√LC। तो यहाँ से फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 1/2 पाई √LC, ठीक है ना। तो ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो न्यू इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ LC ऑक्सीलेशन, ठीक है। तो अगर आप इक्वेशन थर्ड को देखें, इक्वेशन थर्ड जो आपके आंखों के सामने, जब आप इसे डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनली हमारा जो चार्ज की इक्वेशन आती है इस थर्ड को सॉल्व करके डिफरेंशियली, ये आपके कोर्स में तो नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ, Q इज़ इक्वल टू Q0 साइन ओमेगा टी। बोर्ड सिलेबस में नहीं है ये डिफरेंशियल कैसे करते हैं, बट ये डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू आप सॉल्व करेंगे। सो Q इज़ इक्वल टू Q0 कॉस ओमेगा टी आएगा, सॉरी, ठीक है। तो ये आपकी ऑक्सीलेशन का हो जाएगा पार्ट ये। अब आपका जो नेक्स्ट पार्ट इसमें आता है कन्वर्सेशन, ठीक है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग दी ऑक्सीलेशन। इसमें एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, ज़रा देखते हैं इस पार्ट को। तो ये पार्ट मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द ऑक्सीलेशन को देखेंगे। तो देखिए ज़रा इस पार्ट में जो हमारा चार्ज का इक्वेशन आई थी वो क्या थी हमारी, Q इज़ इक्वल टू Q0 कॉस ओमेगा टी। अगर मैं इस इक्वेशन को लेता हूँ और यहाँ से मैं I की वैल्यू फाइंड करूँ, यानी dQ बाई dt, तो व्हेन वी रिप्लेस दिस वैल्यू Q0 कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो वी गेट Q0 माइनस Q0 ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये आपका सिंपल I की इक्वेशन निकल आई। अब आप एनर्जी निकालते हैं, तो एनर्जी स्टोर, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हमारी कैपेसिटर में स्टोर होगी, एंड एनर्जी ऑफ कैपेसिटर Q स्क्वायर बाई 2C, Q की वैल्यू Q0, ठीक है। ये आपने वैल्यू जो थी Q की Q0 कॉस ओमेगा टी पुट करी, तो Q0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2C, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक हुई। और अगर आप मैग्नेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं जो आपकी इंडक्टर में होगी, वो होती है हाफ LI स्क्वायर। ये भी आप लोग ने पहले ही पढ़ चुके हैं, लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था। तो 1/2L I की वैल्यू आपने फाइंड करी थी ऊपर, माइनस ओमेगा Q0 साइन ओमेगा टी, एंड ये आपकी वैल्यू थी और उसका स्क्वायर था, ठीक है, I स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप U भी फाइंड करेंगे तो हाफ L ओमेगा स्क्वायर Q0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये पार्ट आपका आएगा, ठीक है। और ओमेगा स्क्वायर को आप 1/LC रिप्लेस कर सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर को आप 1/LC लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप इस वैल्यू को जरा पुट करिए, तो 1/2L ओमेगा स्क्वायर को 1/LC आपने पुट कर दिया, तो Q0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, L से L कैंसिल हो जाएगा, सो आपका कितना पार्ट आएगा, Q0 स्क्वायर अपॉन 2C, और साथ में आपका आ गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, एंड Q स्क्वायर अपॉन 2C जो ये पार्ट है।
अगर आप ये आपकी यू बी आई और ये आपकी यू ई आ गई, दोनों आपने निकाल ली हैं। तो अगर आप टोटल एनर्जी निकालते हैं तो यू ई प्लस यू बी, तो जरा इनका सम करिए। यू ई की वैल्यू क्यू स्क्वायर बाई 2c कॉस स्क्वायर ओमेगा टी हो गई, और यू बी की वैल्यू क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गई। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्यू स्क्वायर बाई 2c कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ जाएगा, और इसकी वैल्यू सम 1 होती है। तो क्यू स्क्वायर बाई 2c हमारी ये टोटल एनर्जी हो जाएगी, जो कि आपको साफ साफ दिख रहा है। क्यू भी कांस्टेंट है और सी भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट आ जाएगी। ठीक है, तो इस मेथड का यूज़ करके आप प्रूव कर सकते हैं कि एलसी ऑक्सीलेशन में जो टोटल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, यहाँ से एलसी ऑक्सीलेशन आपका एक इम्पॉर्टेंट वीडियो था जो अभी मैंने क्लियर किया आपको। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, और अगर ये आपको क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।